कर्नाटक के साबिक वजीर आला और मरकजी वजीर कुमारास्वामी ने रियासती हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में आवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है। हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आरएसएस के मसले को उठा रही है। इन्होंने कहा कि बेंगलुरु के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और हुकूमत उन मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है। No, RSS issue, this government, because of their failures in all other issues, they wanted to divert the people's mind to other issues. For that reason only, because of their failure only, they are raising this RSS issue through Priyanka Kharge. कर्नाटक बीजेपी लीडर जगदीश शेट्टर ने आरएसएस की सरगर्मियों पर पाबंदी से मुतालिक मुतालिबात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी लीडर ने कहा कि कर्नाटक हुकूमत अपनी कोताहियों से तवज्जो हटाने के लिए इन मसाइल को इस्तेमाल कर रही है। इन्होंने आरएसएस के खिलाफ दिए गए बयानात को बेबुनियाद करार दिया है। Only for his convenience, all these statements he is giving because of his failure of the administration, failure of the law and order, and corruption is adamant. Corruption is most of corruption is already contractor association alleged that a lot of corruption is there in the government. Even it is increased by this government. So to divert all the minds, all these activities against the RSS, his statements against RSS, without any reason, without any proof. B.R. Ambedkar and in RSS shakas, everybody, all the caste, creed, every people are participated. No discrimination in the Sangha shakas, Sangha participation, Sangha Sibaras is concerned. Everybody is allowed. So unnecessarily he is creating a division of the Hindu community. It is only to gain the power, criticizing and appeasement of the politics of the Muslims. For that purpose, always he is criticizing the Sangha Parivar, RSS. It has no value at all and public will not be. आंध्र प्रदेश के वजीर राम प्रसाद रेड्डी ने रायचोटी शहर में रामापुरम से मंगला कॉलोनी मदनापल्ले रोड तक 54,19,000 की लागत से तामीर किए गए सीसी रोड की तामीर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत रायचोटी को तरक्की दे रही है, रियासत की तरक्की ही हुकूमत का मकसद है। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुलाजिमीन को डीए देने का भी ऐलान कर चुकी है। ఈ రోజు రాయచోటి పట్టణంలో అభివృద్ధిలో భాగంగా ముఖ్యంగా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అలాగే సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది। దానిలో భాగంగానే ఇక్కడ రామాపురంలో సుమారు 52 లక్షల రూపాయలతో 15th ఫైనాన్స్ లో సీసీ రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత గ్రామ సీమల్లో అయితేనే మున్సిపాలిటీల పరిధిలో 15th ఫైనాన్స్ గత ప్రభుత్వంలో అడపాదడపా ఇచ్చిన గ్రాంట్లన్నిటినీ మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత బిల్లులు చెల్లించి 15th ఫైనాన్స్ లో అభివృద్ధి పథకాలు తీసుకొని రావడం జరిగింది। దానిలో భాగంగానే ఈ రోజు మున్సిపాలిటీల పరిధిలో కూడా సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది। मुस्लिम समय का वेदिका आंध्र प्रदेश की जानिब से रियासत के दारुल हुकूमत मंगलागिरी में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क में मुसलमानों की माशी हालत और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली खवातीन ने कहा कि बहुत से इलाकों में तुलबा माली मसाइल की वजह से अपनी तालीम तर्क कर रहे हैं, जबकि इस मौके पर वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर अकरम और मुमताज सनतकार हनीफ ने कहा कि मुसलमानों में माली मसाइल का सामना करने वाले अफराद हमसे राबता कर सकते हैं, हम उनकी मदद करेंगे ताकि वो तालीम को जारी रख सकें। అలాగే ఎన్నో పథకాలు పెట్టారు। ఆ పథకాలకు ఒక్కటి కూడా బడ్జెట్ సరిపోయేందుకు ఇంతవరకు కేటాయించలేదు। దాదాపు ప్రభుత్వం వచ్చి 14 నెలల తర్వాత అయిపోయినా కూడా ముస్లిం మైనారిటీలకు బడ్జెట్ కేటాయించింది, దాంట్లో ఇంతవరకు కూడా పూర్తిగా బడ్జెట్ కేటాయించింది। ఎక్కడ ఏమడిగినా కూడా ఇమాం బోర్డులకు జీతం ఇవ్వదంటే బడ్జెట్ రాలేదంటారు, మరమ్మతులకు మసీదులు కట్టే బడ్జెట్ రాలేదంటారు। ఇలాగా ప్రతి ఒక్క శాట
మనము ఒంపోడులో పోయినా కూడా మాకు బడ్జెట్ రాలేదంటారు. కానీ ప్రభుత్వము ముందుగా చేయాల్సిన పని ఏమంటే మీరు బడ్జెట్ కృషి ఎంత కేటాయించండి. గృహం పథకం కానివ్వండి, పేద ప్రజలకు ఆ రోజు మన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ₹1,00,000 ఇస్తామన్నారు. దానికి ఆశించారు మహిళలు. మీరు తక్షణమే మాకు కేటాయించిన బడ్జెట్ కేటాయిస్తే అన్ని పనులు కూడా పూర్తయిందని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అలాగే వచ్చే రోజుల్లో కూడా ఏ పార్టీ అయినా కూడా ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చి ఎక్కువ ముస్లింలు గౌరవిస్తే ఆ పార్టీకి మేము తగిన ప్రతిఫలం అందిస్తామని కూడా మేము పార్టీలో డిబేట్ చేస్తున్నాము. మీరు ఏదో ఆశ చూపించి ఊరుకుంటే కాదు, ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నిలదీస్తాం కూడా. మీరు చెప్పిన వాగ్దానం చేయలేదని చెప్పేసి అందుకోసమే ప్రభుత్వాలకు పార్టీలకు డిమాండ్ చేస్తున్నామంటే మాకు కేటాయించిన బడ్జెట్ కేటాయించండి, మాకు రావాల్సిన హక్కులు మాకు ఇవ్వండి. దీంట్లో ఎలాంటి సౌతి తల్లి ప్రేమ చూపించొద్దు. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारत रत्न व साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश के ज़िमन में एमएबी मीडिया की जानिब से उर्दू की तरक्की पर एक खुसूसी गेट टुगेदर प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू अकादमी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी मोहम्मद शेख गौस पीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद शेख गौस पीर ने उर्दू से मोहब्बत करने वालों, स्कॉलर्स और असातिज़ा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने पर मुंतज़िमीन की सताइश की, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शुरका ने उर्दू की तरक्की के लिए अपनी तजावीज़ को पेश किया, जिसमें इलाके के लिहाज से उर्दू सीखने के प्रोग्राम शुरू करने और विजयवाड़ा में एक मरकजी उर्दू लाइब्रेरी के क़याम के मंसूबे और दीगर उमूर भी शामिल हैं। इस मौके पर मोहम्मद शेख गौस पीर ने कहा कि वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू और रियासती वज़ीर NMD की क़ियादत में हुकूमत उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रही है, जबकि आंध्र प्रदेश मुंसिफ TV के चीफ सत्यम ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के बारे में अपनी तजावीज़ को पेश किया। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने कहा कि टीचर्स की मसाइल के हल के लिए तेलंगाना जागृति टीचर्स फेडरेशन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि KGBV ऐसे स्कूल्स में पिछले 2 महीनों से टीचर्स को तनख्वाह नहीं दी गई है। हम फेडरेशन के जरिए टीचर्स के मसाइल को मंजर-ए-आम पर लाएंगे और इसके हल की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं, अलग अलग सेक्शन हेड में उनको सैलरी मिलता है, अलग अलग काम उनको सौंपा जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वर्क बर्डन भी टीचर्स को है, सैलरी में डिफरेंसेस भी है। और कई सारे स्कूल्स है जिसमें KGBV जैसे स्कूल्स जिसमें पूरे के पूरे ख़वातीनों का ही स्टाफ है और बच्चियों का ही स्कूल है, वो हॉस्टल भी है, तो इनमें टीचर्स के ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। और जो लैंग्वेज टीचर्स है, हिंदी, तेलुगु, उर्दू पढ़ाने वाले, इन सब के भी बहुत अलग अलग इश्यूज़ है। इसीलिए हमने तेलंगाना जागृति से एक टीचर्स फेडरेशन हमने लॉन्च किया। आगे चल के फेडरेशन का मतलब ये होता है कि जो भी लोग टीचर्स के लिए काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस टीचर्स के लिए काम कर रहे हैं, उन सबके साथ भी मिलके एक फोर्सफुल ताकत बन के हम सरकार से लड़ेंगे। क्योंकि KGBV जैसे स्कूल में आज 2-2 महीना हो गया, दसरा हो गया, दिवाली हो गया, सैलरी भी अभी तक नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स बिल्कुल नहीं मिल रहे, ऐसे बहुत ही सारे इश्यूज़ है। तो ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे और टीचर्स के लिए हम लड़ेंगे। YSR कांग्रेस पार्टी लीडर S शैलजा नाथ ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से ये मुतालबा किया है कि वो शराब घोटाले से मुतालिक रियासत के लोगों के खदशात को दूर करें। इन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर-ए-क़ियादत मौजूदा हुकूमत पर मुबैना तौर पर स्कैम में मुलविस होने और इस मसले को शफाफ तरीके से हल ना करने का इल्ज़ाम आयद किया। Today, the cheap liquor scam is sinking everybody's brain, mind. They are afraid about the state of affairs. Your alliance, NDA alliance government rule is not for the people. Today's thousands and lakhs of the bottles were recovered from cheap liquor scam leaders. Most of them are belongs to your party, your contested candidates, but you are trying to throw it on others' shoulders.
कड़पा जिले के प्रोद्दुटूर बलदी वार्ड 25 मिट्टी मस्जिद स्ट्रीट में दरगाह दस्तगीर साहब की 11वीं शरीफ के मौके पर वार्ड काउंसलर शेख महानूर कादरी और तेलुगुदेशम अक़लियती लीडर नूरी की क़ियादत में दरगाह पर फूल और चादर पेश की गई। इस तकरीब में टीडीपी स्टेट सेक्रेटरी नंदियाला कोंडा रेड्डी, साबिक एमपीपी नंदियाला राघव रेड्डी और तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर कायदीन ने शिरकत की। మసీద్ దర్గా మసీద్ ఉత్సవం సందర్భంగా మమ్మల్ని ఇక్కడికి ఆహ్వానించి ఒక కార్యక్రమాన్ని రావాల్సిందిగా కోరడము, మేము రావడము, ఇవన్నీ మంచి శుభపరిణామాలు. తర్వాత మానవునికి ఇవన్నీ కూడా భక్తి మార్గంలో నడిచేదానికి ఈ మసీదులు, దర్గాలు, దేవాలయాలు, చర్చిలు ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి మార్గంలో నడిచేదానికోసమే ఇవన్నీ మన భగవంతుని పేరు మీద మనం పెట్టుకొని మనం వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆరాధ్యం చేసుకుంటూ మనము మంచి మార్గంలో నడుచుకోవాలని చెప్పి మన పెద్దలు ఇవన్నీ ఒక నిర్ణయం చేశారు। तमिलनाडु के तिरुचि में दिवाली त्यौहार के पेश नज़र मुख्तलिफ बाजारों में आवाम की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ़ है। लोग जोश खरोश के साथ दिवाली की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। NSB रोड पर खरीदारों का हुजूम देखा जा रहा है और दिवाली के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से आवाम को खरीदारी के ज़िमन में हिदायत भी जारी की गई हैं ताकि आवाम चोरी जैसे वाक़ियात और दीगर उमूर से महफूज रह सकें। केरला के महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत में बारिश की पेशकियासी की है। IMD के उहदेदारों ने कहा कि आइंदा 2 दिनों में केरला में बारिश का इम्कान है और बारिश के पेश नज़र चंद अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। Yeah, we have one well-marked low pressure area in Arabian Sea, and there is a prayer cyclonic circulation in the lower levels very close to South Kerala, and there is one more cyclonic circulation in the extreme eastern parts of Bay. So these three vortices are interlinked. So as a result, and that linking line that we call trough line, that is passing over Kerala. Severe weather to occur in Kerala. So that is why we are experiencing this kind of heavy rainfall episodes. महकमे मौसमियात ने तेलुगु रियासतों में बारिश की पेशकियासी की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में ये डिप्रेशन मंगल तक कम दबाव वाले इलाके में तब्दील हो जाएगा। आइंदा 48 घंटों में यह मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और मजीद मजबूत होकर डिप्रेशन में तब्दील होने की तवक्को है, जिसकी वजह से महकमे मौसमियात ने इंकशाफ किया है कि 22 तारीख से आंध्र प्रदेश के कई अजला में शदीद बारिशें होंगी। इस सिलसिले में कोनासीमा के जिला कलेक्टर डॉक्टर R महेश कुमार ने माहीगीरों को अहम हिदायत जारी की हैं। इन्होंने खबरदार किया है कि 21 तारीख की दोपहर से मौसमी हालात में तब्दीली आएगी, इसलिए कोई भी शख्स माहीगीरी के लिए समंदर में ना जाए। माहीगीरों को जो पहले ही समंदर में है उन्हें फौरी तौर पर साहिल पर वापस आने का मशवरा भी दिया गया है।